So wide aware clicking pictures, and if you're not clicking pictures, which is I think a rarity, can we please clap for the entire team? The entire team who made this film possible. और आप इसे What we do is we first find out if Raj is available. So basically it's Raj and then everybody else just get cast in the corner. Yeah. And then we say, okay, who is Raj worked with us? Okay, so Bhamika is not worked with, let's go ahead. I think, we ask the director first, what does he see? And if he's going wrong, we then. But I think in our case, it's very organic. We can't ever insist on any actor doing a film. So if when Raj hears a script, if he doesn't connect with it, he should not do it because that's like, being in a relationship you don't want to. So I think it's very important once an artist connects, and we've had a share of heartache also. It's been very good for the last few years, but we've seen films that are not good. So we've learned, I think your failures teach you more. So I think it's very important to cast opposites, cast people who play off each other, and there's a certain energy they bring. So Bhamika had not done comedy, so I believe it's very important to cast people in a new facet. And when that happens, it's a little more exciting than seeing somebody do it every time. And I think for the films that have worked in my career, 3 things have happened. The film doesn't have a reference point. So the fact that a guy's got stuck in his haldi and uski tees nahi aa rahi hai, aise picture mujhe nahi lagta hai. And again, and what is that one moment in your career that you would want to revisit again? From my wedding, I think everything about my wedding. 3 days were just the most beautiful days of my life. I would love to relive them again and again. So not one, and of course, especially the shadi, Reras. That was the most beautiful thing when I saw Bhadralekha walking here. I would love to relive that again and again. And from my career, I would say, when as an outsider you come to this city, it can be very overwhelming. And it's very tough. I know a lot of people, a lot of my friends, actor friends who come to this city, और शायद सबको नहीं मिल पाता है. किसी को बहुत लग जाता है, किसी को नहीं लगता है. But I think getting that first film is the most important thing for any actor who's come from outside. तो जो पहली फिल्म की जो खुशी होती है ना, जो 2010 में मेरे साथ हुई थी, वो कॉल जब आता है ना कि listen, congratulations जब कॉल करते हैं, वो बहुत स्पेशल होता है वो मोमेंट. I would love to relive that moment again and again. I would love to. My mother being with me during my first national award, I would love to relive that moment again and again. And बहुत सारे moments हैं. Stree 2 जब पहला डे हम नंबर आता है बॉक्स ऑफिस का, and we all were like, what? क्या? ये सच में हो रहा है? I would love to relive that again and again. इतना टफ नहीं होता मैम अगर आपने वो लाइफ को जिया. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि कहानी के अंदर ना रूह होनी चाहिए. अगर कहानी में रूह होगी ना, आप चाहे शहर छोटा हो या बड़ा हो, आप उसमें घुस जाओगे और अंदर तक निकाल दोगे. बस वही है. तो रूह को पकड़ना है. रूह को पकड़ना. सही बात है. In connection to that, कि ऐसा क्या मैजिक है स्मॉल सिटीज का जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, ऐसे आपको लगता है? प्यार सब कुछ प्यार है. छोटे शहर का प्यार. देखो जवाब बाहर से आ रहा है. यही है. छोटे शहर में ना अभी भी लोग, फैमिलीज, मोहल्ले, सब चीजें जुड़ी हुई हैं. मुझे याद है कि मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ. बॉम्बे का कल्चर अलग है, मुंबई का कल्चर अलग है, दिल्ली का कल्चर अलग था. और आसपास में जब मेरी मम्मी पंजाब से हैं, तो कभी वहाँ पे भी जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी वेडिंग में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो पूरा परिवार एक साथ रहता है. वो आस पड़ोस के मोहल्ले वाले हों चाहे कोई भी हो, वो सब एक साथ, आपका पूरा जो एरिया रहता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको एक दूसरे के सुख दुख के बारे में पता होता है. वो चीज मुझे लगता है शहरों में कम हो गई. आपके पड़ोसी कौन है आपको नहीं पता होगा, सुख दुख तो दूर की बात है. ये फर्क है. सबसे पहले तो मैं देखने जाऊँ. My question to you is, in the trailer we hear this line that
basically जो सरकारी नौकरी करता हुआ लड़का, this is something most of us have heard at home, ऐसा लड़का होना चाहिए. Have you heard something like this, when you were growing up from your parents? And the other question is, what is your personal idea of your big day? Do you want it to be a big fat Indian wedding or something more intimate? बुआ का सवाल पूछा है आपने मेरे को, ये सेकंड वाला था. शादी कब होने वाली है? सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. नहीं, बिल्कुल. मैंने हमेशा ये मैं तो पंजाब से हूँ. मैं चंडीगढ़ में पली बड़ी थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली पंजाब पठानकोट से. तो वहाँ पे तो यही बातें होती हैं. लाइक लड़की बड़ी हुई नहीं है तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर द गर्ल. एंड ये सब बातें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिक्योर नौकरी होनी चाहिए. तो ये तो बहुत ही, आई थिंक रूरल इंडिया की ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कहीं लड़की ब्यानी है तो लड़का थोड़ा सेटल्ड होना चाहिए. सेटल्ड मतलब नौकरी अच्छी होनी चाहिए. आई थिंक ये तो आप सबने ग्रोइंग अप ये सब तो सुना ही है. ऑब्वियसली माय फैमिली इज नॉट लाइक दैट. मेरे कुछ डिफरेंट प्लान्स थे लाइफ के साथ. आप जो शादी की बात कर रही हो, मैं नहीं सोचती हूँ अभी फिलहाल शादी के बारे में. ना ही मैं ये सोच रही हूँ मुझे कैसी शादी, मेरे अभी है ही नहीं अभी शादी वगैरह दिमाग में. जब ऐसा कोई मिल जाएगा और ऐसे लगेगा और मुझे सपने आने लगेंगे बड़ी शादी के, तो मैं बताऊंगी कि क्या सपना आ रहा है. अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक हूँ मैं शादी को लेकर. हल्दी से निकलेंगे तो शादी पे पहुंचेंगे. You as well, what do you think is the Nick Daniel that Raj needs to do in order to fix everything? But why? What's the problem in being stuck? That's okay. So cute. No, it's lovely, but like I don't want to be stuck in traffic. आपको अपनी हल्दी रोज मनाना. Absolutely. But I mean, have fun, no, while it lasts. But it's lasting forever. Yeah. But that's okay. We will find out on the 9th of May. Can we please clap for this lovely answer, the lovely question? आर.के. लक्ष्मण, उन्होंने कॉमन मैन को खास बनाया. और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो बलराज दहानी रहे हैं, संजीव कुमार रहे हैं, इरफान खान रहे हैं, और आप इस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन मैन को खास बनाते हुए. तो ये खास बनाना आपको कितना खास लगता है और उनका आपको अच्छा रिस्पॉन्स करना कितना खास लगता है? मैम, आपने जो ये 3 नाम लिए, ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया में. कि अगर आप मुझे उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में गिन रही हैं जहाँ पे बलराज साहब, संजीव साहब, मेरे पर्सनल फेवरेट इरफान साहब हैं, तो आई थिंक इससे मैं बहुत छोटा हूँ सबके सामने. मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी. I'm still learning, I'm still trying to grow, I'm still trying to do better parts and grow as an artist. पर बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे आके बोलते हैं, जब मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ कि यार आपकी फिल्म देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो हम ही हैं यार. बहुत रिलेट कर पाते हैं आपके साथ. Which I think is a victory because the kind of films we are doing, the kind of stories we are telling, that's the point. कि लोगों को लगे यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो मेरी कहानी भी है. और वो करना एक्चुअली बहुत टफ होता है. वो आसान नहीं होता है कि लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये आप ही हो जो आप पर्दे पर देख रहे हो. पर आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों के साथ इतना एक रिलेटेबल फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि मैं अपना ही उनका, जो कि मैं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से ही आया हूँ. तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. और मुझे बहुत प्राउड है बेटा, आपको और पत्रलेखा को हमने इतने सालों से देखा, और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ बनते बिगड़ते रहते हैं रिश्ते, आपने बिना हल्दी लगाए भी उसके साथ इस डोर में बंधे हैं कि, और आप लोग दोनों की केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी लगती है. तो ये रिश्ता हमेशा बना रहे, इसकी मैं चाहती हूँ कि आपको. एक बात तो आपने मुझे बेटा बोला ना, बहुत मजा आ गया. एक और सवाल है. एक और सवाल. Got it quite well, right? How was that business? करना ही पड़ता है. मतलब कैरेक्टर अलग है, ऑब्वियसली मैं नहीं बिलोंग करती हूँ. तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक तो स्क्रिप्ट में आपको बहुत कुछ मिल जाता है जिस तरह से लिखी गई है. फिर ऑब्वियसली एवरी डे मैं इन दोनों से चेक करवा दी थी, ये ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, मैं ज़्यादा नकली तो नहीं हो गई हूँ, ये कहा भाई ये तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है. तो फिर कहते नहीं ऐसे मत बोल. तो आई थिंक दे बोथ हैव हेल्प्ड मी अ लॉट टू मेक इट एज नेचुरल एंड एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. वी टेंड टू डू बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. तो होता है कि आपको लगता है सारी आज ही मतलब अच्छे से बता देंगे कि हम बना सकते हैं, लेकिन दे बोथ रियली हेल्प. तो या आई मीन इट्स अ प्रोसेस दैट यू आप हर कैरेक्टर के पहले करते हो. तो डिफिकल्ट नहीं था, बहुत मजा था, अच्छा लगा. थैंक यू. और बेचैन है कि ये हम फिल्म कब देखें.
तो उसके पीछे थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द ओरिजिनल सॉन्ग्स, बट ट्रेलर में जो आपने फेड आउट जो रखा है उसके बारे में वो बताएं। मैम ने भी पूछा था ना कि नॉस्टैल्जिया कैसे फील होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वही नॉस्टैल्जिया फील कराने के वही था। तो आप, मुझे याद है कि आप सत्ते पे सत्ता देखे हैं, उस दौर की जो फिल्में होती थी, उस फिल्मों का ना एक अलग चाव होता था, वो फिल्में आपके साथ रह जाती थी हमेशा की। आज भी अगर हम पुरानी फिल्में देखते हैं ना तो बार बार देखने का मन करता है ना। तो मेरी कोशिश ही वही थी कि हम इस तरीके की फिल्म बनाएं जो हमेशा आपके साथ रहे। आप कभी भी ऐसा नहीं कि अभी आप कभी भी आपका मन करे आप फिल्म उठा के देखें और आपको ना वो तब भी फ्रेश लगे और आपको एक नॉस्टैल्जिया फील हो। तो ये भी एक प्रोसेस था, और सबसे बड़ा प्रोसेस तो शायद दीनू सर का था, तो उनका नॉस्टैल्जिया मुझसे भी बहुत जबरदस्त भारी है। वो म्यूजिक में जो दीनू सर सत्ते पे सत्ता नहीं इक्के पे इक्का मारते हैं ना, वो अनबिलीवेबल है। Thank you so much for the question.